ایک ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بہت سارا کچھ ہم اکٹھے کیے. یہ ریسرچ کر رہے تھے ہم بایو انرجی اور اس چیزوں پہ, ادھک فورس پہ, مائنڈ پاور پہ, اور اس چیزوں پہ ہم ریسرچ کر رہے تھے. کچھ کورسز تھے NLP کے وغیرہ کے جو رشیا ہم سیکھتے تھے. ایک میرا دوست ہے, ان کے رشین کے ساتھ پیار محبت ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی. پشاور کے آدمی پشاور کا ہے اور وہ رشین ہے, اور وہ رشین بھی ایسے ماڈرن اور ایسے ایک معاشرے سے اور ایسے خاندان سے ہے وہ کہ وہ تو یہاں کے اور وہاں کے آسمان زمین کا فرق ہے ہم لوگوں کے. تو اب یہ دونوں کی محبت ہو گئی, شادی ہو گئی. اب ظاہر ہے پشاور کے لوگ ہیں وہ تو کہیں نہیں رہتے ہیں نا, وہ گھر داماد نہیں بنتے, تو اس لیے انہوں نے تو آنا ہی ہے گھر ہر صورت میں. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں وہاں پر پشاور چلتے ہیں. تو پشاور تو پہلے آئی ہوئی کہ وہ رسم رواج وہ چیزیں سارا کچھ دیکھے ہوئے تھے. اب چون کے لڑکی بڑے اچھی تربیت یافتہ تھی اور بہت تعلیم یافتہ بھی تھی اور اس نے بہت سارا کچھ پڑھا تھا, تو انہوں نے کہا دیکھے تمہارے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی, تمہارے لیے میں کچھ بھی کروں. تو جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا مجھے سمجھ آ گیا, یعنی میں تو وہاں کبھی نہیں جاؤں گی, پاسبل نہیں ہے, لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں. بات وہی آگے نا سر ایڈجسٹمنٹ کی, جی کہ لڑکی نے ایڈجسٹ کیا. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کو دو جگہ اپنے رشتے بنانے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کا شوہر ہے, اس کے ساتھ اس کو اپنے معاملات رکھنے ہوتے ہیں, اس کا تمام چیزوں کو. تو وہاں سے اگر اس کو بھرپور پازیٹیو رسپانس ملتا ہے, وہ اس کا خیال رکھتا ہے ہر معاملے میں, تو سیکنڈ اسٹیپ پھر ادر پرسن کا آتا ہے جو فیملی ممبرس ہے. اگر شوہر اس کو پورے طریقے سے اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو باقی جگہ پہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے, کیونکہ اصل رشتہ میاں بیوی کے درمیان کا ہوتا ہے. وہ اگر مضبوط ہے تو باقی رشتے اس کے لیے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے. تو لیکن اگر یہاں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے, وہ کہے نہیں میں یوں اور وہ, تو وہاں سے پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں. یہ محبت کی بات جو آتی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچی محبت کسی کو ہو وہ پھر آپ کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی لڑکی ہے وہ سچی محبت آپ سے کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے خاندان والوں سے بھی پیار کرتی ہے, وہ آپ کے چاہے گھر میں کچھ بھی ہو اسے پیار کرتی ہے اگر سچی محبت ہو تو, ورنہ ایسی محبت نہیں کہہ سکتے ہم. اسی طرح اگر مرد ہے وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ لڑکی سے ان کو پیار ہے محبت ہے, تو وہ ظاہر ہے اپنے سسرال اپنے لوگ اپنی جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس سے سچی محبت کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہوتا ہے جب ایک سچی محبت ہوتا ہے اس کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. مجھے خود محبت ہوا, دیکھیں ایک وقت آپ یقین مانے کسی کے کپڑے, کسی کے جوتے, کسی کے جو میرے ارد گرد جو چیزیں ہوتے تھے نا, جب ان کی موجودگی نہیں ہوتے تو میں وہ پاس لے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ محبت ہوتا کیا ہے. تو اس لیے محبت بہت چیز ہے. اگر محبت نہیں ہے تو محبت کرو. مثال کے طور پہ آپ کو محبت نہیں ہے کسی, تو محبت ایک طریقہ ہے کہ سائیکولوجی کے حوالے سے ایک احساس ہے. تو ایک احساس آپ ایک تھوڑے سے اور جگا سکتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, سائیکولوجی کے حوالے سے. اب آتے ہیں ہم جو مقصد جو آج کل کے جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت تو ایک وہ ہے ایک روشنی ہے, ایک سچ روشنی ہے, طاقت ہے. محبت بہت بڑی طاقت ہے, تو اس بڑی طاقت کو استعمال کیا جائے, صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ محبت جو ہے روشنی بن جاتا ہے گھر میں, ورنہ اندھیرا ہو گیا. اس لیے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کریں گے, کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اکثر پیاری, کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ طلاق اور شادی کے مسائل پہ بات ہو رہی ہیں. مسائل چل رہے ہیں جو بہت زیادہ
घरों में इस सिलसिले में। सही सही, तो कैसे हल क्या है? हल ऐसा पेशेंस है और हल एजेंट और संघर्ष से बहुत सारी चीजें हल हो रही हैं। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किस तरह की यानी एक हम आहंगी पैदा नहीं होती है घर में, जो बहू आती है उसके हम आहंगी ससुराल के साथ, ससुरालों के फिर उनके साथ नहीं बनते, तो कैसे कोई हल बता सकती है, कोई टिप बता सकती है? बस थोड़ा सा मतलब ये समझना चाहिए कि चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो शुरू में पेशेंस से और तहम्मुल से अगर काम लिया जाए तो टाइम बाय टाइम चीज़ें सेटल हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप में कितना तहम्मुल बर्दाश्त है हुआ है अक्सर? और थोड़ी रियासतें भी हैं संघ और एजेंट की, तो काफी पेशेंस और काफी जो है वो तहम्मुल मिजाजी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो तो मुझे पता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कुछ कहना चाहती है? आपके कराची का कैजुअल मालूम करना चाह रही थी कि आप नेक्स्ट कब ले रहे हैं लेक्चर कराची? जी, ये 15 को है इंशाल्लाह, 15 को है यहाँ पर पीसी होटल में है इंशाल्लाह। इसी 15 को इंशाल्लाह, हम इसी महीने के 15 को है। अच्छा, और सर ये आपके ऑफिस टाइमिंग क्या है, संडे ओपन होता है क्या? जी, संडे को ओपन नहीं होंगे, बाकी फुल डे जो है ना ओपन होते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी तकरीबन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। हल बताएं, हल पता है हमें सारे मसाइल, कोई बताएं। सर हल का तो ये है कि जो एक उर्दू का प्रोग्राम है ना, कि जब मैं बहू की सास अच्छी ना मिली और जब मैं सास हूँ तो बहू अच्छी ना मिली, इसको कम से कम अगर हम तब्दील कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा हमारा। अगर हम कहें कि नहीं हमारी सास भी अच्छी है और हमारी बहू भी अच्छी है तो ये मसला हल हो जाएगा। और अच्छा होगा कैसे? इसका हल के लिए जहाँ बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लोग इजाज़तें करते हैं, जिस तरीके से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े इलाज इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ आमिलों के पास मुख्तलिफ़ ताबीर गंडे मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं ताकि मामला बेहतर चलें। तो सर उनके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा तजर्बा है और शायद लोगों का बेहतर तजर्बा भी है। अब ये कॉलर का भी बात ये थी कि अगर इसमें समदा को अगर शामिल किया जाए तो सबसे बड़ी बात जो समदा के अंदर जो बहुत सारी चीज़ों के साथ है उनमें तामुल मिजाजी असल में आ जाती है, यानी मशहूर हमारे पास तलून मिजाजी में खात्मा हो जाता है और उसमें सब्र ज़ब्त और उसके अंदर तामुल मिजाजी आ जाती है। जब ये चीज़ आ जाती है तो फ़र्द जो है वो चीज़ों को एक सही डायरेक्शन से देखने लग जाता है, उसकी वजह से मामला जो है वो बिगड़ते नहीं है बल्कि संवरने लगते हैं। समझा से क्या आते हैं इंसान के अंदर, क्या आ जाते हैं? मिसाल के तौर पे ये बात कर रही थी कि मकसद कौन से क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे बड़ी बात है सर कि उसके अंदर जो निगेटिव कुव्वतें होती है वो ख़त्म हो जाती है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो इंसान के अंदर एक मिजाज में जो एक बड़ा बिखरापन होता है और एक बड़ी मुश्किल हालात और ये तलू मिजाजी होती है, वो असल में इंसान के अंदर एक सब्र और वक्त की कैफियत पैदा हो जाती है और उसके अंदर तहम्मुल मिजाजी जाती है, उससे मामला बहुत हो जाते हैं। अगर वो मामला ना हो तो फिर आदमी को तो ज़रा सा भी यानी कि उंगली भी लग जाए तो फिर वो शोला भड़कता है। यानी आपका बिल्कुल सही, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बर्दाश्त करे जो भी है सारा। बिल्कुल सर, हकीकत ही नहीं तो हल कोई नहीं हल है। अगर समझा ये हीलिंग कोई चीज़ों को इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह उसमें बर्दाश्त आ जाएगी और जो बर्दाश्त आ जाएगी तो मामला तो बहुत अलग हो जाएंगे। इसमें सर HMF के हवाले से भी मैं बात कहूँगा कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वहाँ आप HMF के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए एक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं। कहीं तो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, कहीं जो आपको लगे कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसको आप HMF के ज़रिए उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं बिहेवियर के हवाले से और दूसरे मामलों से। बिल्कुल बिल्कुल सही। जहाँ तक ताल्लुक़ है शादी का, तो शादी कामयाब अगर चाहते हैं कि हो तो उसमें अपने तबक़ात के जैसे लोगों में अपनी शादी का सिलसिला रखें
अपने से ऊपर या बहुत नीचे ना जाए, हाँ। तो वहाँ कामयाबी के चांसेस आजकल 80% प्लस है। बिल्कुल, आज सब यही ढूंढ रहे होते हैं कि लड़का बड़ा जी हाँ। अच्छा हो, पैसा हो, हाँ। वो फला हो, वो ये, और उनका जैसा अपना नहीं देख रहे होते। नो 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 हाँ। नो, ऐसा पॉसिबल मैचिंग नहीं है ना, मैचिंग कभी नहीं है। मैचिंग ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो तो नहीं करना चाहते मैचिंग, तो वो कोई भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा पैसा, जितना बड़ा तो फिर झुक के जीना सीख जितना वो, जितना ऐसा, तो वो उस वजह से उससे फिर कॉम्प्रोमाइज करना होता है सर। जी सही, तो वो लड़के का भी गलती है ना। हाँ, तो यही तो बात आ रही है सारी की सारी। जी 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 डॉक्टर साहब, हल हम तो मैं समझता हूँ कि आपस में मोहब्बत और खलूस ज़हनी अमांगी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत जो है वो उसको फ़रोग़ दिया जाए और माशाल्लाह मुस्बत सोच जो है जबरदस्त। इन चीज़ों के ज़रिए मोहब्बत। इस चीज़ को हाँ डॉक्टर साहब सादगी मोहब्बत अपनाई की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मोहब्बत की? तो बहुत मोहब्बत की सर। माशाल्लाह। तो अभी जो आपकी जो घर हैं, जो आपकी जो भाभी है, वो माशाल्लाह आप दोनों डॉक्टर हैं? जी, दोनों डॉक्टर हैं माशाल्लाह। देखिए डॉक्टर साहब ने कितने ज़बरदस्त काम किए, दोनों डॉक्टर मिलके और एक दुनिया बनाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म दोनों की। कम्प्लीटली एक दूसरे को समझते हैं ना। हम पेशा भी हैं, हम इक्वल एजुकेशन भी है, सही। सारी चीजें बैलेंस है, तो लाइफ भी बड़ी बैलेंस है। क्या खूबसूरत लाइफ होंगे। जी 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 डॉक्टर साहब, तो- सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छे जज्बात, मुस्बत ख्यालात, एक दूसरे के लिए एक डॉक्टर एहतराम। को डॉक्टर से शादी करनी है कि नहीं? एक लिहाज तो कहते हैं नहीं करनी चाहिए, एक लिहाज से कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जो है आसमानों में बनते हैं, हाँ, सही तो बात है। जहाँ ज़हनी आमांगी होती है, अच्छा जी और वो डॉक्टर हो या किसी भी जिससे हो। जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you, sir. और थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छी रही और बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में बातें करते रहेंगे बड़ी इंशाल्लाह। खूबसूरत। और व्यूअर्स, यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा, और आज के प्रोग्राम में मैंने खुद भी सीखा आज के प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने डॉक्टर अब्दुल समद और मेरे अजीज असरूर को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.